Guys, please confirm me if my voice is clear. And where are rest of the guys? Are you busy in another class? If CVT की class नहीं हुई, then where are rest of the students? All right, guys, I'm just sharing my screen. Please confirm me if it is visible. Please confirm me if my screen is visible. Visible, right? So what we did yesterday, let's took a quick review. All right. So yesterday we went through. There's no join option. Don't know why. I mean, how come there is no join option? You need to join Tuesday's meeting. Guys, if you are having any problem in joining, please log into Tuesday's meeting. Let me check it out. Meeting has been started, so you can join. All right. So let's take a quick review because today we have to do something really important. I hope the slide is visible on the screen, right? So we went through research methodologies, that is survey, experimental studies, longitudinal, cross-sectional case studies, action research, ethnography, participative, feminist, and grounded theory, right? So these were all the methodologies. Then we understood what is a method. Method is a tool to collect data from people or to collect data from anything. If you're working or experimenting, you're working into labs, collecting data in any way is called a method, right? And then we understood how research works. If we have any title, how do we go with approach, methodology, and method? So I hope everyone is there till. Yeah, then we did data analysis. In data analysis, we discussed that what is data validation, data editing, and data coding. आज हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि what do we call actually data coding, right? And then हमने देखा था कि how do we analyze data? Quantitative data is analyzed through mean, standard deviation, percentage, frequency, range, graph, and chart. And today we would witness that how we analyze quantitative data. जब डेटा हमारे पास आता है या हम किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं नंबर्स में या वर्ड्स में, तो वो हमारे पास रॉ फॉर्म में होता है। फिर इसको हमने एनालाइज करना होता है। एक प्रोसेस है एनालाइज का, क्वांटिटेटिव के लिए जो कि अलग है, क्वालिटेटिव के लिए जो कि अलग है।
उसके थ्रू जो है उस डेटा को जाना पड़ता है एंड देन वी कम टू नो कि रिजल्ट्स क्या हैं हमारी। देन वी हैव इन क्वालिटेटिव थीमेटिक एनालिसिस, जिसमें हम अब बच्चों के रिस्पॉन्सेज को या लोगों के रिस्पॉन्सेज को देखते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट हम एक टॉपिक देते हैं उसको या एक आइडिया बनाते हैं उसका, और फिर उसके नीचे जो भी हमें लिखना होता है वो हम लिखते हैं। तो आई होप डेटा एनालिसिस इज क्लियर। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो प्लीज राइट क्लियर इन चैट सेक्शन। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं। If everything is clear, please let me know. If you have any question till yet, please ask. क्योंकि फिर इससे आगे जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और जब आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें आपको ये दोनों चीज़ें बहुत काम आएंगी। Guys, please let me know if everything is clear till yet. Thematic is you have a lot of qualitative answers. You choose a topic or theme and then you write onto it. हम आगे चल के थीमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं और फिर हमें समझ में आ जाएगा कि थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है। All right, so guys, we are clear till yet, and let's start with quantitative analysis. So this is item one, right? ये हमने बच्चों से पूछे हैं और हमारे पास पूछने के लिए क्या था? Strongly agree to strongly disagree. You can see the statement is, हमने बच्चों को ये statement दी है और हमारे पास 300 participants हैं। This is from my own research, right? So the topic, the first question of my research was English is an important part of the school program, right? So I had options. आप option देख सकते हैं in red boxes: strongly disagree, disagree, undecided, agree, strongly agree. अब ये जितनी भी मुझे लोगों की responses मिले हैं वो numbers में मिले हैं, right? अगर डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने लोग स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, और परसेंट का मतलब है कि 100 में से उनका परसेंट कितना बन रहा है। तो इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल प्रोग्राम, 5 बच्चों ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया है बिकॉज दे डोंट थिंक दैट इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। सिर्फ 5 बच्चों ने डिसएग्री किया है, दैट इज 1.7% ऑफ 100%। 2 बच्चे अनडिसाइडेड रहे हैं, 43 ने उसको एग्री किया है और 245 ने उसको स्ट्रांगली एग्री किया है। अब टोटल हमारे पास कितने 300 पार्टिसिपेंट्स हैं, और अगर हम परसेंट में देखें तो फिर हमारी 100% में से हर किसी ऑप्शन के लिए परसेंट बनी है। दिस इज हाउ हम अपनी जो क्वांटिटेटिव डेटा है फ्रीक्वेंसी और परसेंट में शो करते हैं। इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्कूल प्रोग्राम में ऑप्शंस क्या थे? स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री। अब उनके बिटवीन 5 ऑप्शन थे बच्चों के पास, उनमें से चूज करना था। तो 5 बच्चों ने जो है स्ट्रांगली डिसएग्री चूज किया, 5 ने डिसएग्री किया है, 2 अनडिसाइडेड रहे हैं। अब ये हमारे पास हमने अपनी डेटा किस में शो की है? फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज में डेटा शो की है, और हमारे पास टोटल 300 पार्टिसिपेंट्स थे। 300 पार्टिसिपेंट्स ने इसके लिए रिस्पॉन्स दिया था। अब इसमें सिवाय स्ट्रांगली एग्री और डिसएग्री के कोई और रिस्पॉन्स हमने स्टूडेंट से नहीं दिया था। तो सिंपली अब हमारे पास हमने रिजल्ट किस में शो की है? फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज में। ये चार्ट अगर आपको क्लियर है तो लेट मी नो। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है कि हम किस तरह से करेंगे, हमने सिर्फ इसमें ये बताया कि कितने बच्चों ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया है और स्ट्रांगली एग्री किया है, और 100 में से परसेंट कितना बन रहा है। You just have to understand this chart. इस तरह से मेरे 20 questions थे मेरी research में। English is an important part of the school program. I like English. I'm fond of learning English. I read everything in English. और बच्चों को strongly agree to strongly disagree पे select करना था। If this chart is clear, हम आगे बढ़ें।
ये सारी डेटा मेरे पास क्वेश्चनर फॉर्म में थी, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज में लेकर आई हूँ। और ये फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज विद कम्युलेटिव परसेंटेज भी थी, जिसको मैं लेकर आई हूँ एसपीएसएस से। मैंने अपनी डेटा एनालाइज की थी एसपीएसएस सॉफ्टवेयर में। If the chart is clear, if this table is clear, let me know so that we can move ahead. Please let me know if this table is clear so that we can move ahead. Okay. तो हमारे पास क्या है, अब ये हमने अपने जितने भी ऑप्शंस थे उनको फ्रीक्वेंसी परसेंट में कर दिया। अब इस चार्ट के बाद हम उस चीज को करेंगे एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन इट। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन इट। अब मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अबव टेबल प्लीज एवरीवन गेट कंसंट्रेटेड ऑन द स्लाइड। अब इसको जब भी आप अपनी रिजल्ट्स परसेंटेजेस में या रेशियोज में या फ्रीक्वेंसी में शो करेंगे, उसके बाद आप नीचे अपने नंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? पहले तो आप जो अपने नंबर्स का रेशियो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अबव टेबल 288 पार्टिसिपेंट्स दैट इज 96%। अब वो 96% मैंने कैसे बनाया है? एग्री और स्ट्रांगली एग्री दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है, क्योंकि एग्री और स्ट्रांगली एग्री को मैंने एक में कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट्स 14 एंड 81 0.3 and 0.7, तो आपका टोटल जो बनता है दैट इज 96 फॉर एग्री। So I have written according to above table 288 participants that is 96 believe that English is the core part and subject of the school curriculum. Only 10%, अब मैंने strongly disagree और disagree को combine किया है, have disagreed and believe English to be not the essential part of the school program. Only 2%, that is 0.7, remained undecided. अब मैंने क्या किया है? मैंने जो अपनी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज दी है, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन किया है। मैंने डिसाइडेड अनडिसाइडेड को अलग रखा है, स्ट्रांगली एग्री और एग्री को साथ में एक्सप्लेन किया है, स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री को साथ में एक्सप्लेन किया है। अब ये मैंने किया है नंबर। अब जो दूसरे पैराग्राफ में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी वो मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगी, या अगर मैंने कहीं पढ़ा है उसका रेफरेंस देके एक्सप्लेन करूंगी। फिर इसमें मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है? मैंने लिखा है द अबव परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट्स exhibit very positive attitude of participants towards having English as an essential part of their curriculum. अब बच्चों का एटीट्यूड क्या है इंग्लिश की तरफ? बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं कि इंग्लिश जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे करिकुलम का। बीइंग एट इंटरमीडिएट लेवल, ये बच्चों की लेवल क्या थी? इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स थे। These students might have realized the worth of English language throughout their previous academics. These students might know the importance of English around the globe and believe that if English is part of their school curriculum, they can be better at it. अब पहले पैराग्राफ में मैंने क्या किया है कि जो मेरे नंबर्स थे मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, और फिर दूसरे पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है कि ये जो मेरी रिजल्ट्स आई हैं उनके होने का रीज़न क्या हो सकता है। तो इसमें मैंने कोई नंबर नंबर एक्सप्लेन नहीं किए, इसमें मैंने रीजंस दिए हैं जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इंटरमीडिएट लेवल पर वो पहुंच गए, उनको इंग्लिश की वर्थ पता चल गई, और बिकॉज ऑफ पूरी ज़िंदगी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और हो सकता है उनको इंग्लिश का इम्पोर्टेंस पता है कि पूरी दुनिया में इंग्लिश जो है उनको आगे लेके जा सकती है, इसलिए वो समझते हैं कि इंग्लिश जो है उनके करिकुलम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आई वॉन्ट यू टू री रीड दिस स्लाइड वंस एंड अंडरस्टैंड कि आप पहले पैराग्राफ में क्या लिखते हैं और दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखते हैं। प्लीज reread this once, and once you are done please write down into chat section so that we can move ahead. ये है कि हम अपनी क्वांटिटेटिव डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। प्लीज reread the slide once and write down in chat section.
यहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो। यहाँ पर अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। जब भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज हो या मीन हो या कुछ भी हो, उसको पहले पैराग्राफ में हम नंबर्स को जो है एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे पैराग्राफ में हम रीजंस को एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह की रिजल्ट क्यों आ सकती है। उसमें आई थिंक या आई बिलीव आप कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे, आप जो भी लिखेंगे बहुत ही जनरल लिखेंगे। जब आप इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेंगे, उसके बाद बारी आएगी कि आप इसको स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट करें। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वांटिटेटिव डेटा होती है उसको हम स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट करना। अब ये है, ये हमने इसको एक बार चार्ट है हमारे पास, उससे जो है हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब ये हमारी स्टेटमेंट क्या थी, इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। अब इसको मैंने फिगर बना के लिखा है। सो सी हाउ आई हैव फिगर 4.1, मतलब मेरे चैप्टर 4 की ये पहली फिगर है, दैट इज फिगर 4.1। और वो किस चीज की फिगर है, दैट इज इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम, राइट। अब उसमें स्ट्रांगली डिसएग्री का मैंने रेशो बताया। यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है कि कितने बच्चों ने कहाँ तक जो है आंसर दिया है। स्ट्रांगली डिसएग्री 0 से थोड़े अबव हैं, डिसएग्री 0 से थोड़े अबव हैं, अनडिसाइडेड बिल्कुल 0 के बराबर हैं, एग्री वाले 50 बिलो हैं, स्ट्रांगली एग्री वाले अप टू 250 हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बनाएंगे हम आप पाई चार्ट बनाएं, आप ग्राफ बनाएं, या इस तरह से मैंने बार चार्ट बनाया हुआ है, आप बार चार्ट बनाएं, वट एवर यू लाइक। आपको स्टैटिस्टिकली फिर अपनी रिजल्ट शो करनी होंगी। अब स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी अपनी क्वांटिटेटिव डेटा लेंगे तो पहले उसको फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज में दिखाएंगे, उसके बाद आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे और फिर स्टैटिस्टिकली आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने जो है बार चार्ट लिया है और उसके थ्रू दिखाया कि मेरे जो है लेफ्ट पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे मेरे जो है राइट पे जो जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे जो है वो मेरी ऑप्शंस हैं, और वाई एक्सिस पर मैं दिखा रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी के कितने बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। दिस इज हाउ देन वी हैव टू शो आवर रिजल्ट्स स्टैटिस्टिकली। इफ everybody understood, let me know that it is understood। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। स्टेप नंबर 1 इज कि अगर आपके पास डेटा है तो उसको आप फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज में लेकर आएंगे। स्टेप नंबर 2 इज आप उसको फिर वर्ड्स में लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। स्टेप नंबर 3 इज कि आप उसको स्टैटिस्टिकली फिर प्रेजेंट करेंगे। दिस इज हाउ वी गो विथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जिंदगी में आप शर्त लगा लें, आप मास्टर्स करेंगे या आप पीएचडी करेंगे, nobody is going to teach you analysis like this, so better understand it and practice it right now। if we are if everything is clear up to now, please let me know। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। Please let me know if everything is clear। No, no, bar graph is not the only option. You can use pie chart. You can use any kind of, I mean, it's up to you. You can use pie chart. You can use graph, any kind of graph. I mean, whatever. I mean, I was comfortable with this. Even many of were comfortable with pie chart. They made pie chart, and a few were comfortable with that line graph. So it was all okay. Whatever you use, it's not hard and fast rule. It's up to you. It's your choice. See, it is your research. Your research is your baby. It's up to you how you are going to grow it up.
जब आपका अपना बच्चा होता है तो आपकी मर्जी होती है, आप उसको कैसे भी कपड़े पहनाएं, किसी भी कलर के पहनाएं. So research is always like your own baby. You have to nurture your baby, you have to nourish, you have to go with your choices. All those who are present in the class, please let me know if things are clear. Everyone who is a part of this class, it's only 41710832. They are saying clear. What about rest of the people? We represent graph on first page or last. सबसे पहले हम अपनी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज लिखते हैं, उसके बाद जो है हम उसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर लास्ट में हम ग्राफ से उसको प्रेजेंट करते हैं. फिर हम ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं इन द लास्ट. जो मैंने आपको सीक्वेंस दिखाई है, दिस इज द रियल सीक्वेंस, और यही इस तरह की सीक्वेंस बनती है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी और परसेंट को जो है शो करते हैं, उसके बाद जो है आप उसको रिटन में एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद लास्ट में जो है आप पाई चार्ट हो या आपका बार चार्ट हो, किसी भी तरह के चार्ट हो, उससे आप क्या करते हैं, आप उसको फिर रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. इस तरह से हम क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. इज वी आर क्लियर नाउ? अभी हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, दैट इज आइटम नंबर 4 फ्रॉम माय thesis, that is, I have desired to learn good English. अब I have desired to learn good English में ये हमारे पास जो है रिजल्ट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है और ये परसेंट है. स्ट्रांगली डिसएग्री 3 है, डिसएग्री 3 है, अनडिसाइडेड 9 लोग हैं, एग्री जो है 83 हैं, स्ट्रांगली एग्री 202 हैं और उनकी परसेंटेज है. अब ये आपके पास आइटम है, ठीक है, आई हैव डिजायर टू लर्न गुड इंग्लिश. तो अब आपको क्या करना है, आपने इसको करना है एनालाइज. आपके पास जो है पूरे के पूरे इस 11:27 7 मिनट्स हैं, ठीक है, सॉरी 8 मिनट्स हैं. अब आपने इसको करना है एनालाइज. आपने इसको पहले वर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है. पहला जो आपका पैराग्राफ होगा वो आप नंबर्स को शो करेंगे, दूसरा पैराग्राफ में आप उसके रीजंस बताएंगे कि इस तरह की रिजल्ट्स क्यों आ सकती हैं, और फिर आप अपना पाई चार्ट, बार चार्ट, जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बनाएं. आप प्लीज़ इसको अपने कॉपीज़ पे काम करें, अपने नोटबुक पे करें, ताकि ये हमेशा आपके पास सेव रहें. और इफ एनीवन वांट्स टू डू इट ऑन टू द पीसी दे कैन. फिर आप मुझे जो है स्क्रीनशॉट लेकर भेजिएगा. यू हैव गॉट 8 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. प्लीज, I will be asking you roll number wise. Do not send me your work until unless I ask you roll number wise. I'll be asking you your work to be shared by 11:35. This is your data. You have to analyze it. Can you please tell me what to tell again? I mean, what is not understood? आपके पास, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके पास डेटा है, राइट, जिसमें फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज दी गई है. जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये एक फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज है, राइट, उसको हमने पहले क्या किया है, वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है
कि अकॉर्डिंग टू द अबव टेबल कितने पार्टिसिपेंट्स हमारे बिलीव करते हैं कि इंग्लिश इज़ द कोर पार्ट ऑफ द स्कूल राइट करिकुलम, और 10% जो हैं सिर्फ वो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं 300 में से जो बिलीव करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स हैं जो अनडिसाइडेड हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने नीचे इसके रीज़न लिखे हैं कि क्यों इस तरह की रिजल्ट्स आई हैं। क्या है कि बच्चे सारे जो हैं इसको एग्री कर रहे हैं। हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल पर उनको रियलाइज़ हो गया हो कि इंग्लिश की वर्थ है या वो ग्लोबल लैंग्वेज है, और अगर स्कूल का पार्ट होगी तो वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन किया है बार चार्ट में। ठीक है, आप बार चार्ट बनाएं, पाई चार्ट बनाएं, कोई भी ग्राफ बनाएं, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप फिर एक्सप्लेन करते हैं अपनी रिजल्ट्स। ग्राफ मिस नज़र नहीं आया, एक मिनट। अब मैंने आपको ये रिजल्ट दिए हैं 52 इज इट विजिबल नाउ। अब ये मैंने आपको रिजल्ट्स दिए हैं जिसकी ये फ्रीक्वेंसी और परसेंट है। जिस तरह से मैंने डेटा को एनालाइज किया है, मैंने पहले क्या किया है, पहले पैराग्राफ में आपने भी क्या करना है, इन परसेंटेजेस को बताना है, और फिर दूसरे पैराग्राफ में इसके वैलिड रीजंस देने हैं कि इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। फिर आपने कोई भी चार्ट सेलेक्ट करना है, वो अपने पेंसिल से पेन से ऐसे ही टेम्परली बना देना है, ताकि आपको समझ में आए कि आपने वर्ड्स के बाद चार्ट्स स्टैटिस्टिकली भी अपनी डेटा प्रेजेंट करनी है। रोल नंबर 44, if it is clear please let me know. If you have still any question please ask. 52, please let me know if it is visible now. टॉपिक की बात ही नहीं है, मैंने बच्चों से पूछा है कि आई हैव डिजायर टू लर्न गुड इंग्लिश। ठीक है, अब बच्चों ने स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये मैंने उनको ऑप्शंस दिए थे, तो उन्होंने सेलेक्ट किया है। अब 3 बच्चों ने स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक किया था, 3 स्टूडेंट्स ने जो है डिसएग्री पे क्लिक किया था, 9 स्टूडेंट्स ने अनडिसाइडेड पे टिक किया है, 83 ने एग्री को टिक किया, और 202 स्टूडेंट्स ने स्ट्रांगली एग्री को टिक किया है। अब आपके पास टॉपिक तो है आई हैव डिजायर टू लर्न गुड इंग्लिश, और बच्चों के रिस्पॉन्सेज उसके लिए ये हैं। अब 3 बच्चे, समझे 6 बच्चे एक डिसएग्री कर रहे हैं इसको कि दे डोंट हैव डिजायर टू लर्न गुड इंग्लिश, और 9 बच्चों को वो अनडिसाइडेड, उनको खुद ही पता नहीं कि करना क्या है। बाकी हमारे पास जितने भी बच्चे हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि दे हैव, जी एग्री कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को, यस दे हैव अ डिजायर टू लर्न गुड इंग्लिश। तो हमारे पास टॉपिक तो है ही नहीं, यही हमारे पास टॉपिक है, ये स्टेटमेंट है आई हैव डिजायर टू लर्न गुड इंग्लिश। और हम हमारे पास जो ऑप्शन है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड एग्री, स्ट्रांगली एग्री, उनको हमने एक्सप्लोर करना है कि बच्चों ने इन टॉपिक्स, ये जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनमें कितने बच्चों ने या कितनी परसेंटेज हमारे पास इसकी इस स्टेटमेंट की आई हैव डिजायर टू लर्न गुड इंग्लिश के फेवर में रही है या इसके अगेंस्ट रही है। जैसे पहली हमारी स्टेटमेंट क्या थी, पहली हमारी स्टेटमेंट थी इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। अब इस तरह से आई हैव डिजायर टू लर्न गुड इंग्लिश।
I hope you guys are doing it and not finding it difficult. Just because this is new for you, so you might got stuck somewhere. But try doing it because when you are to research quantitatively or qualitatively, you have to analyze data in both the ways. If you are facing any difficulty in analyzing this, please write down your questions. I would be answering meanwhile. आप अपना ओपिनियन यूज कर सकते हैं, बट आप उसको जनरली लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू राइट दैट आई बिलीव इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स आर नो, यू कैन नॉट राइट. तो आपको जनरल पर्सपेक्टिव देना होगा दैट इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी लर्न दीज डेज. इफ यू राइट आई बिलीव दैट इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश दीज डेज, तो वो बहुत गलत होगा. यू हैव टू राइट इट सो जनरली. या आप अगर किसी किसी के रिसर्च पेपर में कुछ लिखा भी हुआ इस तरह का, अगर आप वो कोट करना चाहते हैं तो आप वो भी कोट कर सकते हैं. अपना ओपिनियन आप लिखेंगे बट जनरल करके लिखेंगे. सी अगर आप इसमें पढ़ेंगे इस स्लाइड में, तो अगर नीचे वाला मैं आप फिर से पढ़ें, आपको कहीं भी लगेगा नहीं कि अपना ओपिनियन पर्सनल है. The above percentage of participants exhibit very positive attitude of participants towards having English as an essential part of their curriculum. अब इसमें कहीं भी नहीं लगा कि ये मैंने बोला है. Being at intermediate level, these students might have realized the worth of English language throughout their previous academics. यहाँ पर भी ऐसा कुछ भी, जबकि ये मैंने लिखा है, but you won't find it कि I believe या I suspect. These students might know the importance of English around the globe and believe that if English is a part of their school curriculum, they can be better at it. अब ये जितना भी मैंने लिखा है बहुत जनरल लिखा है, राइट. और इसमें आपने इस तरह से लिखना है कि ये लगे कि ये बहुत जनरल है और आपका इसमें कोई भी इस तरह का इनपुट नहीं है. आई बिलीव
या मुझे लगता है, I suspect, या according to me, you don't have to write it. If you are done, 41, please send it to me. Please send so that I can check. Please wind up करें. It's 11:40 and we have to wind it up. Make it quick, wind it up. जितने भी ग्राफ ये वो पार चार्ट बना सकते हैं जल्दी से बनाएं so that I can check. According to our table, 35 participants have desired to learn good English. English का E हमेशा capital लिखते हैं. Only 6 participants don't have a desire to learn good English. Only 9 participants remain undecided. ये जिस तरह से आपने लिखा है ये मैंने लिखा हुआ है, right? If you want to even change it, आप ऊपर नीचे करके लिखना चाहें, creativity लाने चाहें, ला सकते हैं. Almost all students want to learn good English because they need it to better understand the core subject like physics, chemistry, and biology, and want to be the top ranges. So that unfortunately all those books are in English. These students just want to understand the main subject and believe that if they learn good English, they fulfill their goals. Wonderful. The way you have written is just amazing. I'm glad that in the first attempt you have written it very well. 41 इसके नीचे ही जो है बार ग्राफ बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ इसके नीचे ही अपने हिसाब से बनाओ. रफली कोई बनाओ, जैसे ही तुम्हारे पास रिजल्ट्स हैं तो रफली बनाओ. And then it's just wonderful, good to go. This is just amazing. In the first go, you have written it very well. Okay. In the above table, total participants have the desire to learn. It's not total participant. 303 participants ही नहीं है हमारे पास. Participants ही हमारे पास 300 है. Desire to learn good English. Only 77% have not desire to learn good English. 27% कैसे बनेगा not? Strongly agree आपके पास सिर्फ 6 लोग कर रहे हैं जो कि 2% बना रहे हैं, right? तो वो 2% है. आपने ये रिजल्ट्स कहाँ से लिखी हैं? रिमेनिंग परसेंटेज कितनी है वो आपने बतानी है. I have no idea about the learning of English. The above percentage of participants have very positive attitude towards English and know the importance English to learn, so they have a strong desire to learn good English. Alright जी, good है, but इसको आप और improve कर सकते हैं. चलें जी, I'll be calling roll number wise and then अपना जो है आप सेंड करते जाएं. Roll number 02. Roll number 02, kindly send your response. Roll number 02, please send your response. Okay जी. प्लीज पाई चार्ट, बार चार्ट जो भी है जिस तरह से. एक मिनट जी, कोई जिस तरह से 32, 39 और 52 ने बनाए हैं, प्लीज इस तरह से बनाएं. According to above data, 202 participants are strongly to learn English. 83 participants are agreeing. आप स्ट्रांगली एग्री और एग्री को साथ में मिला लें, राइट? जिससे एग्री को आप अलग कर लें. 3% स्ट्रांग, 9.75. आप जो एग्री वाले हैं वो स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं या एग्री कर रहे हैं, उनको आप साथ करेंगे. स्ट्रांगली डिसएग्री को आप साथ कर लें. The above percentages of participants show very positive attitude of participants who have desire to learn good English. The students might have realized that English is an essential part of their studies. They might find difficulties in their studies due to lack of English. Okay, Ji, that's good. 08, please. 08. 08, please kindly send your response.
Meanwhile, I'm checking 32s. According to our table, only 22 horizontal strength 80, participant just 80. एग्री को आप पूरा एक ही करेंगे, ठीक है? We can estimate once people more. See, we cannot write we can estimate. We I पूरी research में हम कहीं भी नहीं लिखेंगे. Dig into the professional lives. They believe in the importance of global language, English communication language all around the world. TKD, this is good, and this pie chart is just amazing. That's wonderful. Okay, जी 08. Let me check. Okay, जी pie chart तो आपने बड़ा अच्छा बनाया है. According to the given table, 285 participants have agreed. Wonderful that they have desired to learn good English. English की E हमेशा कैपिटल लिखे हैं बेटा. 6% of the participants disagree that, whereas 3% remained undecided. Wonderful. From the given data, it dictates that record number of students have desired to learn good English. It is due to their awareness of having good English learning a skill which can help them in communication and academics in this globalized and ever-changing world. Wonderful. That's amazing. This is how you really write it. I'm happy to read it. Roll number 14, please. Roll number 14. Roll number 14. Yes, ma'am. What does that mean? Please send your response. Please send your response. Please quickly send your response. 17 and 19. Please send your responses. 17 and 19. Please send your responses. Meanwhile, हम check करते हैं 39 का. There are two groups of people agree to learn English, disagree with to learn English. Most of the people desire to learn good English because every book is written in English language. Wonderful. The above percentage also shows that also English is an important part of today's life for education. Respect. English is universal language. That's good. Even the way you have made the graph is good. Roll number 17 and 19. Please send me your responses. In the above table, the total participants have the desire to learn good English. Only 27 have not desired to good learn English. They have 27% का तो रेशो ही नहीं है हमारे पास जिनको डिजाइन नहीं है. That is just one ratio. While the remaining percentage हम नहीं लिख सकते. We have to tell कि कितनी percentage है वो. The above percentage of participants have very positivity towards English and know the importance of English to learn. So they have a strong desire to learn good English. चलें जी ठीक है. 14 and 17. Kindly send me your responses. Be quick. 32 and 39. 32 का हमारे पास आ चुका है. हमने चेक कर लिया है. 39 का भी हमने चेक कर लिया है. 41 and 44. Please send me your responses. I think 41 has already sent. 44, please send me your response. और 52 का भी हमने चेक कर लिया है. ओके जी जसवी. काम नहीं करना प्लीज मीटिंग में ना रहें. ये डमी स्टूडेंट्स मुझे नहीं चाहिए. ओके जी 17 का अकॉर्डिंग टू table participants have the desire to learn English. Only 6 participants have disagreed that they don't have desire to learn English. ठीक है. Percentage of participants or the participants have very positive attitude towards learning English.
It's very research. If research work in articles are published in English language, they have a desire to learn English. It is a global language. Okay, जी, wonderful. We have experience from above passage that it is equally percentage of strong degree. We have experience हम बिल्कुल भी रिसर्च में नहीं लिख सकते हैं रिसर्च में कहीं भी आप जो है सब्जेक्टिव नहीं बनेंगे you don't have to use I or we in research you can write from above table और वो passage नहीं है वो आपका जो है table है so you can write from above table it is uh, the above table shows the equal percentage of strongly disagree and agree, which is 1. There are 3 students who hasn't decided for learning. We have 27 students which are agree in learning and we have 67 students which are highly desire to learn. जो हमारे disagree के हैं उनको हम total करके disagree लिखेंगे जो हमारे agree और strongly agree के हैं उनको हम total करके साथ में लिखेंगे. The desire of learning English in students is what? English is known as communication tool all over the world. Learning and English is a dream for many students and communicate in good accent. At this time, English is known main subject to develop study skills. 44 pie chart and graph chart बना के भेजो please. Rest is okay. 67 and 70 please. 67 and 70. Send your responses please. I have desire to learn good English. According to above, only persons strongly agree. 80% agree, only 9%. Agree और disagree को हम जो है एग्री और स्ट्रांगली एग्री को एक ही कंसीडर करेंगे स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री को हम एक ही करेंगे उनको प्लस कर लेंगे almost all persons desire to learn good English because English is global language and it is very important to learn English but some persons are not agree to learn English that it is not necessary to be that's good roll number 67 please send me your response quickly because it's only you Usman. Roll number 67, kindly quickly send me your response. Okay, जी, received it. According to above table, 20 participants have agreed to learn good English and only learn good English. Okay. The above analyzed majority participants have also responded to that to learn good English. Good English speakers are interested in improving career and to be smart, to able to operate effective communication and easy to process. Charangi, that's good. 439, 32, something. So this is our attendance for today. Let me take a screenshot. Actually, these are our participants, right? For today. All right. So I hope quantitative analysis is clear, right? And now you know how to analyze quantitative data. So this is how we go with quantitative data. And I believe you find it really easy और आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपको जब आपने इस डेटा को एनालाइज़ किया है, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आई या कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके ज़हन में थे और आप करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आस्क मी दोज़ क्वेश्चंस ताकि फिर जब आप अपने रिसर्च में ये सारी चीज़ें करें, तो आपके ज़हन में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं हो, कोई भी इसमें आपको ऐसा फ़ील ना हो कि हमें नहीं आता या हम नहीं कर पाए हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो कि अभी जो आपने क्वालिटेटिव एनालाइज किया है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ राइट क्लियर अगर नहीं आया कुछ समझ में तो प्लीज़ आस्क मी द क्वेश्चन क्योंकि इसके बाद हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को रिपीट नहीं करेंगे तब तक जब तक अब आप खुद जाके अपने रिसर्च में नहीं करेंगे प्लीज़ लेट मी नो if it is clear or if you have any question
Please let me know if it is clear or if you have any question. It's clear, 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 clear. आप एक काम कीजिएगा, आज आप एक काम करें, कुछ आप रिसर्च पेपर्स लें जो क्वांटिटेटिवली है एनालाइज किए हुए हों. तो will we be doing research like that in final? Yes. हाँ, आपको इस तरह की मैं डेटा दूंगी जिसमें क्वांटिटेटिव फ्रीक्वेंसी और ऑल दीज थिंग्स ये सारी चीज़ें होंगी. फिर आपको इस तरह से जो है अपने एग्ज़ाम में एनालाइज करना होगा, राइट? कोई भी स्टेटमेंट आएगी आपके पास और आपने जो इसको एनालाइज करना होगा क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली. ये हमने तो क्वांटिटेटिव किया है, नेक्स्ट वीक हम करेंगे क्वालिटेटिव. चलें जी, देखें आप बहुत ही अब 02 ने जो बना के भेजा है दिस चार्ट, दिस पाई चार्ट लुक्स सो गुड. और एटलीस्ट जो है, हाँ, जब आप पाई चार्ट बनाएंगे तो उसमें आप स्ट्रांगली एग्री एग्री का अलग दिखाएंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री और डिसएग्री का अलग दिखाएंगे. पाई चार्ट में आप पांचों ही जो है ना वो चीज़ें दिखाएंगे, सिर्फ जब आप लिखेंगे तो उसको आप अमलगमेट कर लेंगे. तो आपको फाइनल में भी इस तरह की डेटा मिलेगी जो कि आपने एनालाइज करनी होगी. अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने सीनियर के पेपर्स चेक कर लीजिएगा, उनमें बिल्कुल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा अवेलेबल हैं. और उनको जो है उन्हें क्या करना था कि उनको उन्होंने एनालाइज करना था. एग्जाम में आपके पास डेटा आएगी और आपने एनालाइज करना होगा. सो आई एम ग्लैड कि यू आर क्लियर और थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया. आई डोंट वांट यू टू बी द एक्सपर्ट राइट नाउ एज यूजुअल, राइट? I just want you to have clear understanding of the things. So I hope you have understood it very well. तो चलें जी, यहाँ पर जो है इसको हम स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीक हम करेंगे क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस. तो अगर आप इसको ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप घर पे बैठ के अपनी डेटा बना के प्रैक्टिस करें, और नहीं तो आपके पास रिसर्च पेपर्स पड़े हों तो आप उनमें जो हैं इसको देखें कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे होती है, कैसे मीन मूड फ्रीक्वेंसीज में या डिफरेंट टेस्ट रन होती हैं, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं. मैं आपको लास्ट में अपनी भी जो है रिसर्च दिखाऊंगी जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे एनालिसिस की हुई थी और फिर मेरे रिजल्ट्स क्या थी, किस तरह से थी. फाइनली जब आप सारी चीज़ों को एक बार जान जाएंगे, फिर जब मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी तो आपको बड़ा आसान लगेगा कि हाँ, ये भी हमने सीखा हुआ है, ये भी हमने सीखा हुआ है, ये भी इधर है. तो वंस वी स्टार्ट लर्निंग ऑल दीज थिंग्स तो फिर हमें समझ में आ जाएगा. So for today, it is all over, right? And I hope कि आपको समझ में आ गया हो कि quantitative data को analyze कैसे करते हैं. If not, you can practice it more at your end और next week मिलते हैं with qualitative data analysis. Till then, take very good care of yourself and see you next week.